Okay, so we are live on YouTube. Welcome to Times of Comedy. Day 2, આજનું સેશન છે about comedy writing. અને introduction થી શરૂઆત કરીએ. જે આખી બોટલ પાણી હમણાં પી જવાના છે એવા કોન્ફિડન્સ સાથે અડધી બોટલ પાણી પી ગયા. એમનું નામ છે ચિરાયુ મિસ્ત્રી. Chirayuભાઈ is a stand-up comedian, comedy writer. He is also the parent team member of the Comedy Factory. અને બહુ જ અલગ અલગ પ્રકારના એક્સપેરિમેન્ટલ રાઇટિંગ્સ માટે જાણીતા છે એન્ડ સ્ક્રીન અને સ્ટેજ બંને પર ખૂબ બધું કામ એમણે કર્યું છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ કોમેડી પરફોર્મિંગ એન્ડ રાઇટિંગ. સો વેલકમ ચિરાયુભાઈ, વેલકમ ટુ ધ સ્ટ્રીમ. We have Maulik Panchal with us all the way from Canada. Maulik is a part of the Cafe Comedy team and also a stand-up comedian, improviser, comedy writer for a couple of genres. So welcome Maulik bhai. Thank you so much. કેટલા વાગ્યા છે તમારે ત્યાં? મારે સવારના 8:30 થયા છે. તો તમે સવા 8:30 વાગે શેરવાની પહેરીને શું કરો છો? ટ્રેનમાં જવાનું છે અત્યારે. આઈ શાબાશ, વાહ. सूरज बरालिया हमारे साथ है. मूड नांदुराથી અત્યારે આપણી સાથે જોઈન કરે છે. સ્ટેન્ડ અપ કોમેડિયન, કોમેડી રાઇટર. કોમેડી રાઇટિંગ માં એ સ્કેચ વિડિયો ફોર્મેટ અને લાઈવ ફોર્મેટ બંનેમાં સ્કેચેસ થી લઈને he also writes a web series. Is also working on couple of more scripts and a stand-up comedian तो बिल्कुल है. So welcome Suraj Baralia, welcome to the stream. Thank you. We have Mr. Vivek Shukla. Vivek Shukla is a stand-up comedian and a comedy writer. काफी सारे टेलीविजन शोज के लिए वो लिखते हैं और फिलहाल अभी उनके करंट राइटिंग प्रोजेक्ट्स में वन ऑफ द प्रोजेक्ट इज द कपिल शर्मा शो एज वेल. तो स्क्रीन और स्टेज दोनों राइटिंग के लिए ये काफी नोन नेम है मुंबई में. तो आज उनका स्वागत करते हैं इस टीम में. वेलकम विवेक भाई. थैंक यू. अभी गोरखपुर से ज्वाइन कर रहे हैं आप, राइट? हाँ जी गोरखपुर से हैं. ये बात. एंड वी हैव आर्यन कादरी विद अस. चिरायु भाई बहुत सारा स्माइल कर से आर्यन कादरी ने જોઈને કારણ કે આપણે પૂછ્યું अच्छा हाँ मैं કીધું हाँ. तो आर्यन कादरी जो कि चिरायु मिस्त्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, इम्प्रोवाइजर एंड अ राइटर एज वेल. सो वेलकम आर्यन, वेलकम टू द स्ट्रीम. અને હું અમિત ખુવા ઓબ્વિયસલી. તો આપણે શરૂઆત કરીએ with a very specific and a very curiosity वाला question जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि स्टेज અને સ્ક્રીન રાઇટિંગ does the process differs? બંને બહુ જુદું છે કે જોક લખવો એટલે જોક લખવો, or if you write for screen and if you write for stage, do you think the entire process changes or just the style of writing changes? We'll start with Chirayu bhai. I think બંને ટોટલી જુદા પ્રોસેસ છે. બીકોઝ સ્ટેજ વર્સિસ સ્ક્રીનમાં મેઇન ફરક પ્લેટફોર્મનો જ છે. બીકોઝ જ્યારે તમે સ્ટેજથી કરો તો મીડિયમ ઇઝ યોર ઓન સેલ્ફ. કારણ કે હું કોઈ પણ જોક લખીશ તો મને ખબર છે કે એને કઈ રીતે એક્ઝિક્યુટ કરવું. પણ સપોઝ મેં કોઈના માટે સ્ટેન્ડઅપ લખ્યું કે પછી મેં કોઈ સ્કેચ વિડીયો કે પછી કોઈ સીન લખ્યો જેમાં આપણે પંચીસ નાખ્યા, તો એને આપણા મગજના પ્રમાણે ડિટેલિંગમાં લખવું પડે કે મારા મગજમાં એ જોકનું દ્રશ્ય અને સિચ્યુએશન આવી છે તો તમે એ પ્રમાણે એક્ઝિક્યુટ કરી શકો. બીકોઝ અગર એ પ્રમાણે એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય તો આખું હગી દેશે લોકો એના પર. તો આઈ થિંક સ્ટેજ વર્સિસ સ્ક્રીનમાં એ સૌથી મોટો ફરક છે. અને સ્ક્રીન રાઇટિંગ ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ પ્રોસેસ દેન સ્ટેજ રાઇટિંગ. બંને બહુ જ જુદા અને બહુ જ ડિફરન્ટ છે. રાઈટ. કારણ કે વે ઓફ પ્રેઝન્ટેશન બદલાય છે એટલે એનાથી લખાણ બદલાય અને લખાણ બદલાય તો લખવાની પ્રોસેસ બદલાય. લોકો બી બહુ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય. તો લાઈક તમે પોતે જે એક્ઝિક્યુટ કરો અને બધા મળીને તમારું પ્રોડક્ટ એક્ઝિક્યુટ કરે, जमीन आसमान नो फर्क पड़ जाए. Okay, I just realized Vivek भाई is joining us from Gorakhpur. हम आगे का सेशन हिंदी में करेंगे. आपका एक्सप्रेशन मैं एक्सप्रेशन से ऐसा मैं जज के थोड़ा उनका गोरखपुर से जज किया मतलब ना अरे मैं एक्सप्रेशन से जज किया, नॉट गोरखपुर मतलब आउट ऑफ गुजरात में इतना ही मेंटालिटी था यार. तुम चिरायु भाई you was right, you were right, I agree. Okay, Aryan Kadri, what's your thought about screenwriting and screenwriting? Absolutely, मतलब as Chirayu bhai just said कि मतलब like it's absolutely different because हम लोग जैसे कि when you write a sketch, जैसे कि अगर हम लोग ऑफिस देखें या फिर something like जैसे कि ऑफिस में there is something like awkward comedy, तो हम लोग as a stand up comedian we cannot जैसे हम लोग स्टेज पे जाके हम लोग awkward comedy दिखा नहीं सकते, but जब दो लोग का conversation दिख रहा है it's something absolutely different, but as beautiful as it can get. सेम की मतलब अभी हम लोग देखते हैं कि बिल बर ने जैसे कि कोई बिग माउथ, रिक एंड मॉर्टी ऐसा कुछ लिखा, अभी ये सब एनिमेटेड शोज हैं, तो मतलब हम लोग ने कभी सोचा नहीं था हमारे लिए स्क्रीन राइटिंग इज लाइक जस्ट मूवीज, बट
ऐसे से फॉर्मेट में जो स्टैंड अप में नहीं कर सकते उसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि मेनी पीपल, काफी राइटर ऐसा बोलते हैं कि दिस इज नॉट अ स्टैंड अप जोक, दिस इज अ स्केच जोक. सो लाइक इट्स ऑब्वियसली समथिंग जो काफी ज्यादा डिफर करते हैं. लाइक इवन ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हम लोग स्टैंड अप में ये एक्ट आउट करते हैं तो खाली स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शंस में लिख दें. ऐसी राइट रोल कि हम लोग खुद कर रहे हैं और वी आर टेलिंग समवन एल्स टू डू इज काफी ज्यादा डिफरेंट. विवेक जी, आपको मैंने स्टेज पे भी सुना है और आपका लिखा हुआ हाँ मैंने जी। स्क्रीन पर भी देखा है. एक सिंगल जोक आप ले कि जो आप स्टेज पर भी परफॉर्म कर रहे हैं एज अ परफॉर्मर खुद, और वही जोक आपने किसी टेलीविजन शो की स्क्रिप्ट में भी डाला हुआ है एंड द अदर परफॉर्मर इज परफॉर्मिंग, क्या चेंजेस करने पड़ते हैं उस सेम जोक में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है भैया कि हम स्टेज पे कुछ और बोलते हैं और स्क्रीन के लिए कुछ अलग होता है. स्क्रीन पे अगर कुछ लिखना रहता है तो सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है ऐसे का. हमें पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ बातें नहीं होती हैं. किसी बड़े ब्रांड की नाम नहीं हम ले सकते हैं. बल्गर काम नहीं कर सकते हैं. बल्गर के कुछ डबल मीनिंग हम कुछ जोक्स नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परिवार से रिलेटेड लोग होते हैं जो आपको सुनते हैं, देखते हैं. और स्टेज का ये है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन उसमें भी ध्यान देना पड़ता है कि आपका पब्लिक कैसा है, सामने कैसे दर्शक कैसे बैठे हैं. आज के यंग के जनरेशन के सामने अगर आप कुछ भी बोलते हो, प्यार मोहब्बत या फिर डबल मीनिंग, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, आपके साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं. लेकिन यही बात आ जाती है जब स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे आप ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा. आप बैन कर दिए जाएंगे. आप देख सकते हैं मिनिमम यूट्यूब को छोड़कर आप, लेकिन स्क्रीन पे आप ये सब नहीं कर सकते हो. तो स्टेज का ये है कि राइटिंग में आप जो भी आप एक होता है प्लॉट बनाते हो, आप एक टॉपिक पे करते हो, उसमें भी आप ध्यान देना पड़ता है कि कैसा हमारा ऑडियंस कैसा है, सामने ऑडियंस कैसी बैठी हुई है, तो इस पे लिखना पड़ता है ऐसे. So the key point is liberty. In stage writing you have the liberty of saying about anything, but in સ્ક્રીન screen पे writing માલિકી કોઈ અલગ है ना, तो अपना नहीं चलता. તો બહુ બધી વસ્તુમાં આવી જાય, રિસ્ટ્રિક્શન્સ તો નહીં પણ બહુ બધી વસ્તુમાં ગાઈડલાઇન્સ આવી જાય કે આ નહીં અથવા આ કરો તો આવી રીતે જ કરવાનું. ટ્રુ. રાઈટ. મૌલિકભાઈ, what do you have to say here? લાઈક મને એવું લાગે છે કે જ્યારે સ્ટેજ રાઇટિંગ હોય ત્યારે પછી લિબર્ટી ફ્રીડમ અને આપણો હોલ્ડ હોય. when you are performing તો કંઈક વસ્તુ ખોટી જઈ રહી છે તો we can correct it, because આપણી પાસે મલ્ટિપલ ઓપ્શન્સ હોય કે આ વસ્તુ આ રીતે જઈ રહી તો આપણે ભાઈ સેકન્ડ 2-3 પંચ એડ કરી શકીએ આફ્ટર પંચ વગેરે. ત્યારે સ્ક્રીન રાઇટિંગમાં કેવું કે વી હેવ કે ભાઈ આપણે એકવાર આપી દીધું પછી કે ખોટું ગયું તો પછી દે કેન નોટ કરેક્ટ, બીકોઝ એક સ્ક્રિપ્ટ ફિક્સ કરેલી છે. તો એક આપણે જોવી પડે. બીજી વસ્તુ કે સ્ટેજ રાઇટિંગમાં એક પર્સપેક્ટિવ થી વાત કરી શકીએ, સિંગલ પર્સપેક્ટિવ થી કે ભાઈ હું બોલું છું તો હું પર્સપેક્ટિવ થી. જ્યારે સ્ક્રીન રાઇટિંગમાં કેવું કે જેમ કે ઓફિસની વાત કરી તો મલ્ટિપલ આર્ટિસ્ટ ઇન્વોલ્વ હોય, તો ત્યારે લખવા માટે મલ્ટિપલ પર્સપેક્ટિવ, મલ્ટિપલ એંગલ જોઈએ આપણે કે ભાઈ આ પર્સનનું ફોકસ કેવી છે. તો એ મતલબ સ્ક્રીન રાઇટિંગ થોડું ડિફિકલ્ટ પડે ઓવરઓલ, કારણ કે પણ એનું જ્યારે આઉટપુટ સારું મળે તો એપ્રિસિએશન બી સારું થાય. પણ જો એક રિસ્કી પ્રોસેસ છે, રિસ્કી મતલબ કે થોડું ચેલેન્જિંગ એન્ડ થોડું મગજ માંગે એવી પ્રોસેસ છે. ત્યારે સ્ટેજમાં કેવું કહે કે ભાઈ ચલો એક સેટ નથી ચાલી રહ્યો, હાફ ઓફ ધ વે કટ કરીને યુ કેન સ્ટાર્ટ વિથ ધ અનધર સેટ વેન યુ આર પરફોર્મિંગ. રાઈટ. સુરજભાઈ, તમે પ્રોપર સ્ટેન્ડ અપ બી લખો છો અને તમે સ્ક્રીન રાઇટિંગ બી કરો છો, લાઈક શોર્ટ સ્કેચेस અને વેબ सीरीज. मैं એવું પણ જોયું છે તમારા રાइटिंग के अंदर, मैं हिंदी में बात करूं, मैंने ऐसा भी देखा हुआ है सूरज भाई आपके राइटिंग में कि जो सेट या जो टॉपिक पे आपने स्टैंड अप किया हो उसी टॉपिक पे मैंने आपका स्केच भी देखा है. so what do you think about the difference जब वही टॉपिक के ऊपर उन्हीं जोक्स के आसपास you are writing a stand up and you are writing a sketch? नहीं, मेरे लिए बेसिक प्रोसेस जो है वो सेम ही है, अगर मैं स्टैंड अप लिख रहा हूँ या मैं स्क्रीन के लिए लिख रहा हूँ. प्रोसेस मेरा सेम ही है. जिस तरह से मैं अप्रोच करता हूँ कि हाँ मेरे को ये, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कल हमारा बात हुआ था कल के सेशन में, कि जैसे मैं एक टॉपिक चूज करता हूँ, टॉपिक से पॉइंट पे आता हूँ, पॉइंट पे से अपने क्या बात करना है उस पे आता हूँ. तो जो मेरा बेसिक प्रोसेस है वो सेम रहता है, मगर उसके बाद जो बात हुआ हमारे के पैरामीटर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. कि जैसे हम बात करें कि आज हम स्क्रीन के लिए लिख रहे हैं तो हम एक दो डायलॉग नहीं भी बोले और विजुअली बता सकते हैं उसको. तो वो 2-3 चीजें पैरामीटर्स है हमारे पास कि भाई फॉर एग्जांपल स्टैंड अप पे बोल रहे तो हम लोग डायरेक्ट एक चीज हमारे को एक्सप्लेन करना पड़े, वो चीज को भी हमारे को फनी बताना पड़े. क्योंकि हम लोग दो डायलॉग 3 डायलॉग बोल रहे तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते. और जबकि स्क्रीन पे क्या होता है कि आप एक वो बोलते हैं ना कि एक पिक्चर 1000 वर्ड्स बोलता है, तो वो स्क्रीन का एक वो फायदा होता है. तो मेरे ख्याल से अंदर के पैरामीटर जो है सब प्लॉट सबके चेंज हो जाते हैं, मगर जो मेरे लिए जो कोर वो है वो सेम ही है. राइट. अब इसको स्पेसिफिक पर्सन ओरिएंटेड क्वेश्चन से एकदम जनरल डिस्कशन में ले जाते हैं अपन. तो आई जस्ट ट्राई टू लाइक गो टुवर्ड्स वन डायरेक्शन विद द डिस्कशन एंड फिर आप
सब एक दूसरे से बात करेंगे, हम सब उस फॉर्मेट में ले जाते हैं. राइटिंग फॉर योरसेल्फ एंड राइटिंग फॉर द अदर पर्सन, राइटिंग फॉर अ परफॉर्मर और खुद के लिए लिखना, इसके डिफरेंस के बारे में या इस प्रोसेस के बारे में कोई इंसिडेंट, कोई प्रोसेस या कोई मेजर डिफरेंस या कुछ बताना चाहे आप में से कोई? हाँ, इसमें हाँ. बोल सकते. हाँ बिल्कुल. हाँ, इसमें क्या होता है अमित भाई, जनरली हम भी स्टैंड अप करते टाइम भी मेरा जनरली अगर किसी से कन्वर्सेशन होता है तो मैं कहीं ना कहीं सबको यही बोलता हूँ कि यार हम है ना, दो लोग अलग है. जो वो घर पे बैठ के जो लिख रहा है ना सेट, वो अलग है, और वो जो परफॉर्म कर रहा है ना, वो अलग है बंदा. ये दो लोग अलग है मेरे हिसाब से हर बार. तो वो हम कभी भी लिखते टाइम ये सोचो ही मत कि भाई ये मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कि ये दूसरा परफॉर्म कर रहा है. अगर आप वो लिखोगे ना कभी, ये तो ये फनी है, ये कोई भी परफॉर्म करे ये फनी होगा. हाँ, फिर उसके ऊपर वो कैसे किस तरह परफॉर्म करता है उस पर वो बात डिपेंड करती है, वो किस तरह उसको रखता है. जैसे फॉर एग्जांपल जब उसको पंच आता है, अगर वही वो प्रॉपरली नहीं बोलता है तो वो नई बात बनेगी. मगर आप जैसा सोच रहे हो आइडियल, वो आइडियल कंडीशन अगर कोई भी परफॉर्म करे, मैं करूँ, आर्यन करे, कि चिरायु भाई करे, कोई भी करे, वो सेम ही पंच फूटना ही चाहिए. वो अगर प्रोसेस से आप लिखते हो ना, तो मेरे ख्याल से वो इजी पड़ेगा हमारे को. हम खुद के लिए लिख रहे हैं कि दूसरे के लिए. और इससे क्या होगा ना, एक बहुत बड़ा जो हमारा डर है वो भी टूट जाएगा कि भाई हाँ, स्टैंड अप के लिए लिख रहा तो इजी है, स्क्रीन के लिए लिख रहा तो हार्ड है. तो वो भी टूट जाएगा हमारे लिए. Right. Is it also like I guess Chirayu bhai or Vivek bhai would be able to answer this, or right person to answer this. Is it also person oriented? किसके लिए लिख रहा है? Like while writing, if you know कि इसको ये आदमी एक्ट करने वाला है, is it becomes easy, or like do you write it that way? आई थिंक या ट्रू, बिकॉज वो बहुत मैटर करता है कि दो तीन चीजें मैटर करती है. एक तो क्या प्लेटफॉर्म है, मतलब उसमें भी कैसा प्लेटफॉर्म है. जैसे प्राइम टाइम में अगर कोई शो है कि कोई फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी शो है, तो उधर आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा जैसा रिक्वायरमेंट है. उधर आप अपना आर्ट नहीं दिखा सकते. फिर कभी अगर लिबर्टी ज्यादा दे रहे, जो मेकर्स है वो बोलते हैं कि आप करो, हम आपको थोड़ा फ्रीडम दे रहे हैं, आपके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे, तो उसमें यू कैन पुश द लिमिट अ बिट. दूसरा, आई थिंक इंटेंट बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हो. किसी के लिए लिखना या खुद के लिए लिखना, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हर एक का चॉइस है. बट आप उसमें भी क्या करना चाहते हो. जस्ट आप फटाफट लिख के काम खत्म कर देना चाहते हो, या फिर यू वांट के भले कोई आपके डायलॉग बोलने वाला हो, बट क्या ओवरऑल आपका एम है कि आप आर्ट फॉर्म को अपलिफ्ट करोगे, कि मैं आज कुछ एक जोक तो ऐसा लिखूं जो लोगों के दिमाग में रह जाए, और कभी कोई सर्च करे कि ये अगर मैंने लिखा है तो अच्छा लगना चाहिए. तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है. और ऑब्वियसली कौन बोलने वाला है वो भी इम्पोर्टेंट है. जैसे इट डिपेंड्स ऑन, आप नेटफ्लिक्स के लिए शो लिखोगे और आप फॉर एग्जांपल ऑल्ट बालाजी या वूट के लिए लिखोगे, या फिर आप दूरदर्शन के लिए लिखोगे, पूरा सारा प्लेटफॉर्म डिफर करेगा, बिकॉज सबका टारगेट ऑडियंस अलग है, सबका टाइप ऑफ कंटेंट अलग है, सबका कंजम्पशन लेवल अलग है. सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू वर्क अपॉन. ओवरऑल सभी अच्छे ही है. Vivek bhai, would you like to add something here? हाँ भैया, अपने लिए पहले तो मैं परफॉर्मर था, वो तो राइटर में बाद में बना. तो अपने लिए लिखना बड़ा आसान होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि टोन क्या रखनी. अभी एक किसी मैं पंजाबी बंदे को मैं दे रहा हूँ, तो टोन अपना यूपी का है, तो उसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम पड़ जाता है बंदे को उसमें ढलने में. तो अपने लिए तो आसान होता है, लेकिन दूसरे के लिए जब धीरे धीरे पता चलता है कि ये प्लस पॉइंट है. अभी मैं मान लीजिए कि मैं सपना के लिए लिख रहा हूँ, कपिल शर्मा शो में कृष्णा भाई के लिए अगर लिख रहा हूँ, तो पहले तो उनका मुझे कैरेक्टर जानना है कि लैंग्वेज क्या है. तो लैंग्वेज उनका पूरा राठियन है. उसमें आपकी आवाज कटी आई गेस. फरी जॉइन किया. अभी आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन वीडियो चला गया आई गेस. अच्छा. हाँ, अब वीडियो आवाज दोनों प्लीज कंटिन्यू.
था वही मैं कह रहा था कि अपने लिए कुछ ज्यादा ही आसान होता है लिखने में, दूसरे के लिए थोड़ा समय लगता है, उनको जानना पड़ता है कि ये किस टाइप का इनका टोन क्या है, क्या ये पंचेस अच्छे से गिरा सकते हैं कि नहीं, उस जगह लैंड करा सकते हैं कि। तो मेरा जितना मानना है, मैं परफॉर्मर हूँ, तो पहले मैं परफॉर्मर हूँ फिर राइटर हूँ, तो मैं बताता हूँ कि भाई मैं जो लिखता हूँ मैं अपने लिए लिखता हूँ तो वो अच्छा लिखता हूँ, लेकिन दूसरे के लिए थोड़ी सी समस्या होती है, फिर वो बताता है कि भाई मेरा इस चीज को मत रखो क्योंकि मैं तुम्हारी टोन की तरह नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मेरा टोन कैसा है, मैं जो भी पंचित करता हूँ वो हमारा यूपी का होता है, पूर्वांचली लैंग्वेज होता है जो लोगों को फनी आता है, आपने देखा है, तो मैं उस टाइप का ही लिखता हूँ और अपने लिए। राइट। इज इट आल्सो लाइक जैसे स्टैंड अप में भी अपन फील करता है कई बार कि एक पंच लाइन हमने जो लिखा है स्टेज पर हम उसे प्रेजेंट करते हैं, वो लोग हंसते हैं उसके ऊपर, लेकिन उस तरीके से वो लैंड नहीं हो रहा है जिस तरीके से हमने लिखते टाइम सोचा था अपने दिमाग में। क्यों आ भी रही थे बोली, मैं ऐसे बोलूंगा, सही है स्टेज पर कुछ और निकल गया लेकिन लोग हंसे, मतलब द अल्टीमेट आउटकम व्हाट व्हिच वी वांटेड वी गेट इट। तो ये वक्त इतना दुख ना था उस टाइम, उतना दुख हमें शायद नहीं होता है कि यार इस तरह से भी लैंड हुआ लेकिन ये भी चल रहा है, दिस इज आल्सो द स्टाइल इन व्हिच द पंच लाइन इज वर्किंग। व्हेन यू आर राइटिंग फॉर स्क्रीन, तो आपने एक तरीके से अपने दिमाग में तो एक विजुअल क्रिएट किया है जो आप कुछ हद तक मेकर्स को समझाने की कोशिश करते हो कि मेरे दिमाग में ये ऐसा सीन है, पर अगर वो उस तरीके से ना बने या उस तरीके से लैंड ना हो जिस तरीके से आपने अपने दिमाग में सोचा था, बट स्टिल इफ द आउटकम इज गुड, इफ पीपल आर लाइकिंग इट, इफ पीपल आर लाफिंग ऑन इट, डू यू फील सेटिस्फाइड? क्या ठीक है ना यार, मेरे तरीके से नहीं हुआ लेकिन लैंड तो हुआ पंच किसी और तरीके से हुआ। ठीक ठीक। तो सेटिस्फाइड फील होता है कि थोड़ा ऐसा रहता है कि यार इस तरीके से करते जो मैंने सोचा था, और वो थोड़ा फिर सेल्फलेसनेस लाना पड़ता है कि चलो हो गया, मैंने लिख दिया, मेरा काम वहां पे खत्म हो गया है। एक राइटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सोचेगा कि भाई मेरा ही जाना चाहिए था क्योंकि मेरा पेमेंट अब कट जाएगा, वो पंच ही नहीं गिरा। तो फिर लेकिन फिर बाद में ये आता है कि चलो भाई काम तो किया अपना बंदा, फिर उसको हम समझाते हैं कि नहीं यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये कुछ ज्यादा बेहतर कर सकता था, ये जो पंच मैंने जो तुम्हारे लिए लिखा था ये उससे ज्यादा लाफ्टर फूटने वाले थे। तो बस इतना ही आता है, लेकिन बाकी लास्ट में जो अंत भला तो सब भला। राइट। सूरज देव, व्हाट डू यू से? नहीं, ये होता है मेरे साथ भी जनरली, ऐसा होता है कि हम जो विजुअल क्रिएट करते हैं और जो आउटपुट बनता है, पहली बात तो बहुत बार ऐसा होता है कि अरे यार ये ऐसा तो नहीं था, मगर बहुत बार होता है कि लोग जो बना उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, फिर वो हम लोग मन को बहला लेते हैं कि नहीं यार मन के जो अंदर विजुअल है और बाद में जो हम विजुअल एक्चुअल देखते हैं उसके ऊपर, तो फिर हम वो एक्चुअल जो हमने सोचा था कहीं ना कहीं वो भी धुंधला हो जाता है, तो फिर वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर अच्छा बना है तो, और नहीं अच्छा बना तो वो हमारा प्रिंट रहता है ताजा, नहीं ये अच्छा था। राइट। यस मौलिक भाई। लेकिन इसका दो तरीके से, मतलब दो पहलू है। एक तो कि जब हम लोगों ने पंच लिखा वो उस तरीके से लैंड नहीं हुआ लेकिन लाफ्टर आया, तो ऑलमोस्ट फाइनल रिजल्ट कि हमको लाफ्टर चाहिए था, लाफ्टर मिला। अगर अपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम लाफ्टर मिला तो अपने को थोड़ा दुख होगा कि चलो नहीं अच्छा मिला, उससे अच्छा मिल सकता था। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उससे अच्छा भी मिल सकता है, वी नेवर नो, कुछ अलग तरीके से किया तो अच्छा भी मिल सकता है। तो उसमें हम लोग को भी एक चीज सीखने को मिलेगी कि वी कैन ऑल्सो राइट इन अ सर्टेन टर्निंग अ प्रॉपरली वे, कि अगर कुछ और थोड़ा पर्सपेक्टिव करके लिखेंगे तो अच्छा भी मिल सकता है। तो हम लोग को सीखने को भी मिलता है अपन को, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। राइट। तो दोनों हो रहे हैं। लाइक इफ हम लोग एक वे में डाले तो जैसे कि लेट्स से कि सी एंड लास्ट क्वेश्चन को भी मैं इसमें लिंक करूं अगर, सो इट इज सिमिलर कि लेट्स से कि देयर इज अ बेबी, अब बेबी के देयर इज अ बेबी सिटर एंड अ पेरेंट का खुद का बेबी होता है। व्हेन वी आर अ स्टैंड अप कॉमिक इट्स आवर ओन बेबी, वी आर द पेरेंट ऑफ इट। बट जब हम लोग व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन राइटिंग, लाइक राइटिंग फॉर समवन एल्स, लाइक लास्ट ईयर आई थिंक आई वाज राइटिंग, मैं सोहम के साथ एक स्केच लिख रहा था एंड लाइक वो पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा ये हो रहा था कि what basically sketch उसका था and I was writing for him, मतलब along with him। तो basically case वो आ रहा है कि the person who is producing it वो हमें expect कुछ और कर रहा है and we are giving something else। same जैसे कि अगर एक बेबी सिटर है, अब बेबी सिटर तो a parent is expecting कि बेबी सिटर इस वे में बेबी सिट करे, but maybe the babysitter finds a better method, कोई चीज ज्यादा बेटर ढूंढ पाए या फिर something just different जो पेरेंट ऑल्सो डिस्कवर्स कि ओके दिस इज समथिंग दैट मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया, इट्स ओके दैट वर्क्स बट इट वर्क्ड, समथिंग लाइक दैट। सो द सेम थिंग हैपेंस इन ये वाले केस में कि whether it is screen writing या stand up, it just works
So that's the best part कि like वो immediate result का best part वही है कि like when you get it, so it's absolutely good for it. जैसे कि baby के case में you immediately understand कि like what's the right thing, what's the wrong thing. So it is similar to the babysitter and the parents वाला approach. राइट ऑल्सो अगर हम स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में ना सोचें, अगर हम सिर्फ मान लो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कॉमेडी टाइप जैसे स्केच की बात करें तो स्केचेस आर आल्सो ऑन स्क्रीन एंड स्केचेस आर आल्सो लाइव. इन लोगों का एक स्केच लाइव भी हो सकता है यूट्यूब या किसी और टेलीविजन स्क्रीन या किसी स्क्रीन पे भी हो सकता है. So do you think that other than writing and performing there are other elements also which are making a very good role like editing or camera or light or Yeah, like, sure. right? So what are the key elements like is it making ये सारी चीजें स्टेज पे नहीं मिलती है तो is it making the stage sketches like a little hard or difficult या उसका एक अलग मजा है या हाउ डू यू डिफर दैट कि एक स्केच यही एक सेम स्केच है जो स्टेज पे भी जाएगा टेलीविजन पे भी जाएगा, दोनों का आउटकम में फर्क लगता है आपको कि स्टेज पे ज्यादा चलेगा क्योंकि वो लाइव कनेक्ट है या स्क्रीन पे ज्यादा चलेगा क्योंकि एडिट भी है? I think both are completely different. Just sketch involved है इसलिए दिमाग कहता है कि कंपेयर करें, क्योंकि लाइव जो स्टेज पे करते हैं इट्स एन एक्ट. उसमें एक्टर्स का जस्ट જેવી રીતે મૌલિકે કીધું કે you have only one chance, you can't like mess it up. तो रीटेक नहीं मिलेगा आपको लाइव में अगर आप कर रहे हो, अनलेस अगर रिकॉर्डेड लाइक कोई शो के लिए कर रहे हो तो. लेकिन इफ अगर लाइव प्ले जैसा कुछ कर रहे हो तो वो स्केच में आपको रीटेक नहीं मिलेगा, वो चांस गया तो गया. लेकिन उसमें काफी सारे लिमिटेशंस भी है. जैसे अगर कोई प्ले होता है जो लाइव देखते हैं और किसी प्ले पे बेस्ड मूवी देखते हैं तो मूवी में आपके पास अच्छे से शूट करने के लिए एंगल्स है. आप अपने कैमरा एंगल्स, अपने शूटिंग स्टाइल, अपने एक्टर्स के द्वारा एक इमोशन क्रिएट कर सकते हो. प्ले में वो टोटली सिर्फ साउंड और एक्टर्स पे बेस्ड है, उसमें आप सिनेमेटोग्राफी और वो सारे प्रोज हट जाते हैं. लेकिन प्ले में जिस लेवल का परफॉर्मेंस होगा बिकॉज यू हैव ओनली वन चांस, तो वो शायद सिनेमा या स्क्रीन पे वो पार्ट चले जाता है क्योंकि एक्टर को बैक ऑफ द माइंड पता है कि हाँ नहीं अच्छा गया तो रीटेक ले लेंगे. राइट. तो दोनों प्लेटफॉर्म के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट और टोटली डिफरेंट. इफ यू हैव वॉच्ड की एंड पील, अगर देखा हो आपने यूट्यूब पे, तो वो और डेव शपेल आर वन ऑफ द बेस्ट स्केच कॉमेडी क्रिएटर्स इन द होल वर्ल्ड. लाइक उनके स्केच उनके मरने के 50-60 साल बाद भी लोग याद रखेंगे, शायद ज्यादा. तो वो लोग जो स्टेज पे करते हैं उनका काम टोटली डिफरेंट है अपने स्केच वीडियो से, क्योंकि कुछ चीजें एज विवेक ऑल्सो सेड कि जो परफॉर्मर है उसके हिसाब से भी आपको लिखनी पड़ेगी. क्योंकि अगर हम खुद ही कर सकते तो हम अपने ही अलग अलग क्लाउन बना के सब लोग, मतलब 6 लोग चिरायु बन के ही कर लेते. राइट. क्या बोलते हो विवेक? हाँ बने बहुत बढ़िया भाई, ये सही है. बढ़िया बोला कि अपने लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है लिखने का तरीका. और जो स्टेज होता है भैया, लाइव स्टेज में होता है कि आपको तुरंत रिस्पांस मिलता है कि हमारा जोक इतना चला. अगर मैंने 10 जोक लिखा और तुरंत पता चल जाता है कि अरे यार मेरे तो 6 ही जोक चले, लाफ्टर 6 पे आए 4 पे नहीं आए, तो ये प्लस पॉइंट है कि हम बोलेंगे कि बेहतर बोलेंगे. और वहीं ये टीवी स्क्रीन पे ये होता है कि अगर हमने शूट कर लिया टीवी पे तो वो आने हैं 1 हफ्ते बाद आएंगे, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद एडिट हो गए. बाकी उसमें जो मसाला है, लाफ्टर है, वो एडिटिंग का जितना प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और भव्य बना देता है. तो ऐसा होता है ना कि 10 में से 6 तो लाइव में फूटा था, यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि 8 फूट जाता है, 2 एक्स्ट्रा फूट जाता है, बेहतर हो जाता है. टीवी पे भी सेट कर सकते हो, टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं. हाउ डू यू मेजर द रिस्पांस? लाइक लाइव जब आप कोई जोक आपका आप करो या कोई और करे, लेकिन लाइव में तो तुरंत दिख रहा है कि ये परफॉर्म किया, ये रिस्पांस है. हाउ डू यू मेजर द रिस्पांस इनटू द स्क्रीन एलिमेंट? लाइक स्क्रीन पे तो हम डायरेक्ट हम वही है कि जो हमारे एक कैमरा मैन हंस दिए तो तब मान गए, हाँ बढ़िया गया भाई, हो गया ये भाई साहब देखिए कि स्पॉट बॉय हंस दिया. बाद में जब हम बाहर निकल के आते हैं तो स्पॉट बॉय बोलता है भाई 1 नंबर आपने किया, वो वाला जो जोक था परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त दिया, तब पता चलता हाँ ये वाला सही था.
तो हमें वो ही लोग देते हैं कि ये तुम अच्छा किया, ये चीज अच्छा था, लेकिन बाकी Right. जब टीवी पे जब आता है तो वो तो कमेंट अपने आप आने लगते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो आप पे कमेंट आ जाता है कि भाई बहुत अच्छा था, आग मूत्रेला फालतू फलाना फलाना, फिर पता चल जाता है, तो एक हफ्ते बाद ही पता चलता है। Right. Maverick bhai wanted to add something. ચિરાગ ભાઈ કીધું ઇઝ પરફેક્ટલી ઓકે. ખાલી એક માઇનર બ્રીફ કહું કે જ્યારે લાઈવ સ્કેચ હોય ને તો ધ મેઇન બેનિફિટ ઇઝ યુ આર કનેક્ટિંગ ટુ ઓડિયન્સ ડિરેક્ટલી, સો દેર ઇઝ અ મેઇન एडवांटेज. સૌથી મોટો એડવાન્ટેજ એ કહેવાય કે वो है कि आप सीधा ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हो, तो यू आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल एंड यू आर फीलिंग कि रिस्पांस प्रॉपर आएगा, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑल्सो. लेकिन जो रिकॉर्डेड स्केच है, मतलब जो ऑनलाइन स्केच है या टीवी स्केच है, उसमें एक चीज है कि यू आर गेटिंग मोर चांस ऑफ डिटेलिंग ईच एंड एवरीथिंग. कुछ छोटी छोटी चीजें भी जो आप डिटेल कर सकते हो जो आप लाइव में नहीं कर सकते, काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ इंटरनल कुछ दिया वो हुआ, तो डिटेलिंग पार्ट इज अ गुड इन रिकॉर्डेड वर्जन. So that is the biggest difference in this both are. हाँ, एक और पॉइंट आया दिमाग में कि हाँ. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लाइव में उधर जो भी 500,000 लोग आएंगे वहीं देखने वाले हैं, तो लाइव में एक एम्बियंस बंध जाता है कि वो होता है ना, शो में आप शुरू करो परफॉर्म करना, फिर 15-20 मिनट के बाद सब लोग वो मूड में आ जाते हैं. वो टीवी इंटरनेट या किसी पे आपको पता नहीं है कौन किधर देखेगा, वो आपका जोक समझेगा कि नहीं, आपका टारगेट नहीं ऑडियंस समझेगा, होगा कि सही है। नहीं. कोई बिजनेसमैन सीईओ भी देख सकता है, कोई मजदूर खड्डा खोद के खाना खाते हुए भी देख सकता है, किसी की मम्मी देख सकती है, किसी के पापा देख सकते हैं, और सबका अलग अलग चॉइस आएगा और सबका रिव्यू देने का तरीका भी अलग होगा. कोई सीधा गाली लिख देगा कमेंट में, उसको समझ आया या नहीं आया. तो आई डोंट थिंक के टीवी, रेडियो, इंटरनेट, इन सब माध्यम पे रिस्पॉन्स, मतलब ओवरऑल आइडिया आता है, बट लाइव जितना तो कभी आएगा भी नहीं, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है. અને ये बहुत अच्छी बात की चिरायु भाई ने कि यहाँ पे इट इज ऑल्सो लाइक वो एम्बियंट ની વાત તમે કરી ને, એની ઉપરથી એવું भी था कि वहां पे माहौल भी डिपेंड करता है. उस टाइम पे जोक लिखा है, हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स व्हिच आर आल्सो क्रिएटिंग इम्पैक्ट. हमारे पहले कौन परफॉर्म करके गया है, सामने ऑडियंस का मूड क्या है, बीच में कुछ क्या हो गया, अचानक सेकंड लाइन से कोई खड़ा हो, बहुत सारी चीजें हैं. बट व्हेन यू आर वाचिंग ऑन अ इंटरनेट माध्यम और एनी ऑनलाइन माध्यम, तो घटना वहीं पे हो जाती है कि वो उसको एक स्टैटिक चीज दिख रही है जो एडिट में से फाइनल ड्राफ्ट निकला है. तो वहां पे तुम कौन से भी माहौल हो, लेकिन तुमको एक स्टैटिक चीज दिख रही है, वो तो है. पर इसमें एक ऐसा अप्रोच कर सकते हैं कि लाइक जैसे कि हमेशा हम लोग लाइक टारगेट ऑडियंस का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग बहुत से लिमिटेड रखते हैं कि ये दिस पर्टिकुलर थिंग इज द टारगेट ऑडियंस. जैसे कि मैंने ये थिंग आई रिमेम्बर, मैंने एक बार सूरज भाई का एक काफी अच्छी चीज मुझे लगी थी. सो एक बार ऐसा था कि उन्होंने कुछ लिखा था एंड दैट थिंग गॉट रिलीज्ड, और तो उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया एंड मुझे पूछा कि कैसा लगा. तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा और किस किस को कॉल किया, तो उनने मुझे बताया कि मैंने ये 4 अलग लोगों को कॉल किया. सो बेसिकली हमेशा देयर इज नॉट ऑलवेज वन टारगेट ऑडियंस, बट एक सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस होती है. ये 4-5 अलग अलग सेट्स ऑफ ऑडियंस होते हैं. तो लाइक कि तुम एक अलग हमेशा सोचते हो, मे बी वो कोई और इंसान बाकी जिन लोगों को कॉल किया होगा वो भी अलग वे में अपने अपने वे में सोचते होंगे. तो बेसिकली उनने 3 अलग सेट्स ऑफ टारगेट ऑडियंसेस को अप्रोच किया जस्ट टू नो एंड टेस्ट कि ये बार जो लिखा वो कैसा है, बिकॉज इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं तो एटलीस्ट डिलेड रिस्पॉन्स मिले. तो वो एक अप्रोच अच्छा लगा मुझे कि लाइक लिटरल सेट्स ऑफ पीपल को अप्रोच करना. Right. Do you also like what are your thoughts? हाँ सूरज भाई, please go ahead. मेरे ख्याल से अमित भाई जो आपने जो क्वेश्चन सरफेस किया था इसमें कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीजों में जो थिएटर है ना, ये जो अपना स्टेज है और जो स्क्रीन है, ये दोनों चीजों में कहीं ना कहीं ऐसा है कोई दूसरे पैरामीटर्स मैटर करते हैं, ऐसा आपने शायद पूछा था. तो मेरे हिसाब से क्या है कि हमने ऐसे बहुत से प्लेस भी देखे जो आज कहीं ना कहीं पिक्चर बन गए और हमारे को दोनों चीज देखने में मजा आया है. आप अगर देखो तो उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि यार ये जो पिक्चर बना ये ज्यादा मजेदार था वो प्लेस से. हम लोग ऐसा नहीं बोलते जनरली. और इसमें क्या होता है, जैसे अभी जैसे एक एम्बियंस एक ये है, तो वो शायद आपको अगर वो स्क्रीन पे नहीं मिले तो स्क्रीन पे ऐसी दूसरी चीजें मिलती है जो आपको थिएटर पे नहीं मिले. जैसे स्क्रीन पे आपने एक तालियों का वो डाल दिया या ऑडियंस का फोटो बता दिया, तो वो कहीं ना कहीं दोनों जगह ऐसे फीचर से जिससे आप आपका 100% दे सकते हो. राइट. सो मेरी आवाज आ रही है? सब चिपक गया मेरे यहाँ पे. हाँ जी, आ गया. आ रही है. ओके.
राइट. सो चिराग भाई ऑल्सो यहाँ पे अपन एक और चीज की ये भी बात करते हैं कि જે આપણે બીજી વાત કરી કે બીજા બધા એલિમેન્ટ હોય when you are putting it on screen તો એમાં બહુ બધા એલિમેન્ટ હોય. Do you plan that at time of writing कि यहाँ पे ये डिटेलिंग चाहिए मेरे को कि पीछे ऐसा एक फोटो चाहिए जिससे मेरे राइटिंग में ये भी मतलब बनता है, ये भी एक जोक है, ये पीछे मेरे को ऐसा एक फोटो चाहिए. डू यू प्लान दैट? ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन कि कौन से प्लेटफॉर्म पे है और कौन सा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बट डू यू ऑल्सो प्लान दैट व्हाइल राइटिंग? आई थिंक ये जो चीजें हैं वो आपको जो रिम्यूनरेशन मिलता है मेकर की ओर से और ऑडियंस की ओर से उस पे है कि अभी जैसे मेरे पास कोई एक ऐसा सपोज कोई प्रॉपर्टी का ऐड बनाने का आया है काम जिसको कुछ मतलब नहीं है कि मैं क्या उसमें यूनिकनेस दिखा सकता हूँ या क्या फनी कर सकता हूँ. वो बस बोलता है कि एंड में 1 मिनट तक पंच डाल दो और एंड में ये कर देना. तो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, तो उसको तो शायद मैं काम जानबूझ के खराब करूंगा. और दूसरा जो या लिमिटेड करेंगे एक्चुअली खराब, या तो फिर लिमिटेड करेंगे कि उसको जो चाहिए दे दिया. ના હું તો ખરાબ જ કરી દઈશ, મોટો વાંધો નહીં तो और दूसरा ये है कि अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पे सब लोग आइडिएशन में बिलीव करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि कुछ नया फ्रेश करे जिसकी वजह से कुछ क्रिएट करे, तो वैसी जगह पे आपका दिमाग सोचेगा कि कुछ ऐसा करते हैं जो ऑडियंस घर पे बैठ के नोटिस करेगी और फिर एक्टर या डायरेक्टर या उसको मैसेज करेगी कि अरे आप मैंने ध्यान से देखा हो फ्रेम पॉज करके कि पीछे ये जोक था. वो जो मार्वल की फिल्मों में अगर आप ईस्टर एग देखोगे कि पीटर पार्कर के रूम में जब आप इंटरनेट पे जाके देखते हो तो उसमें लिखा होता है कि 12 ईस्टर एग्स इन स्पाइडरमैन मूवी. उसके रूम में एक आयरन मैन का फोटो लगा होगा, वो फोटो जो किसी फिल्म में आपने देखा होगा. सो वैसा डिटेलिंग करने का मतलब ही तब है जब वैसे लेवल पे वो चीज जाने वाली है या फिर वैसा अप्रिसिएशन मिलने वाला है. हाँ, आई थिंक इट इज फेयर फॉर आवर एफर्ट. राइट. दूसरी चीज है when we are अरे दूसरे को भी बोलना है तो बोलना. हाँ प्लीज प्लीज, अरे एकदम इनफॉर्मली रखेंगे हम लोग. Suraj, you want to add something here? Do you plan detailing? हाँ मैं करता हूँ जनरली. बहुत बार हाँ एक होता है कि जब शूटिंग करते हैं हम लोग ऑन फ्लोर होते हैं तब बहुत सी चीजें नई ऐड हो जाती है क्योंकि लिखते टाइम शायद हम अकेले होते हैं, मगर जब ऑन फ्लोर जाते हैं तो बहुत से इनपुट्स आते हैं, एक्टर्स के इनपुट आते हैं, डायरेक्टर के, वो लाइट मैन का भी इनपुट आ जाता है, अरे इसको ऐसा कर तो वो सब इनपुट्स तो वहाँ पे चेंज होते हैं. मगर मैं डिटेलिंग करता हूँ कि हाँ राइटिंग में मेरे हिसाब से इतना तो चाहिए, फिर जो आते हैं इनपुट तो वो हम लेना है नहीं लेना है वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं. लेकिन वो कहीं ना कहीं डिटेलिंग जरूरी है, फिर वो भले ले ना ले वो जो है वो डायरेक्टर पे डिपेंड है कि भाई नहीं इतना बजट नहीं है. तो पीछे मेरे को जैसे इन्होंने बोला मेरे को पीछे मैटर नहीं करता वो पीछे गुलदस्ता है कि नहीं है, निकाल दो पैसा लग रहा है तो. लेकिन अपने लेवल पे मेरे ख्याल से हमने करना चाहिए क्योंकि हमको बहुत बार नहीं पता होता अमित भाई के जैसे अभी का जो सिनेरियो हो गया वो क्या हो गया कि आप एक स्क्रिप्ट लिख के दो, फिर हम कोई प्रोड्यूसर स्पॉन्सर ढूंढेंगे तो वो स्पॉन्सर प्रोड्यूसर कितना बड़ा मिल रहा है आपको नहीं पता. तो आपने शायद वो कचरा लिख के दिया या ना, फॉर कचरा इन द सेंस कि आपने कुछ ऐसे ही लिख के दिया है कि भाई हाँ ये यूट्यूब के लिए बनने जा रहा है, वो जाता है एक आधे बड़े बंदे को बताने, कहीं ना कहीं वो अरे नहीं यार इसमें तो वो डिटेलिंग ही नहीं ऐसा हो जाता. मेरे ख्याल से हमने हमारा जितना हो सके विजुअलाइज होता है उतना तो मेरे ख्याल से हमने लिख ही लेना चाहिए. राइट राइट. नहीं मतलब मैं वही कह रहा था कि वो तो बेसिक काम में है ही, लेकिन एक पॉइंट पे अपने को वो आइडिया आ जाता है ना कि ये क्या करने वाला है स्क्रिप्ट का. अगर आप सालों वो जब सामने से हमारे को खुद होके प्रोजेक्ट आता है हाँ कि भाई हाँ ये करना है ये बंदा है तो अपने को पता चल जाता है कि ये बंदा तो नहीं काम का है, तो फिर वो हम बहुत लिमिटेड हो जाते. ये विवेक भाई कपिल शर्मा शो में लिखते हैं तो उनको तो लास्ट मिनट पे ऐसा हजारों चेंजेस भेजते हो क्योंकि मुझे पता है कि टीवी जो गति पे काम करता है सोने नहीं देता आदमी को, तो नहीं देता वाकई में. आखिरी मिनट पे तो एक पॉइंट के बाद उनका भी दिमाग कहता है कि अरे यार इतने लिख के दिया है वो नहीं पसंद, और फिर एंड मिनट पे तो वो ह्यूमन नेचर है कि एक पॉइंट के बाद आप दे देते हो कि हाँ मैंने कोशिश कर ही रहा था लेकिन वो कोई ले नहीं रहा है तो अभी मैं भी क्या करूं.
राइट। दूसरा एक यहाँ पे ये भी पॉइंट है जो अपन बात करें कि जैसे हमने बीच में बात किया कि इट इज ऑल्सो पर्सनल ओरिएंटेड, कौन बोल रहा है, किसके लिए लिख रहे हैं, ये भी है। खुद के लिए लिख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो ही जाती है बिफोर राइटिंग की ये ऐसे होगा, मतलब सीधा विजुअलाइज कर रहे हैं हम खुद को स्टेज पे और उसी हिसाब से लिख रहे हैं। बट किसी और के लिए लिख रहे हैं तो एक एक पॉइंट ये होता है कि व्हेन यू आर हैविंग द एक्सेस ऑफ द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग, आप हो वहां पे उसको गाइड करने के लिए, नॉट एज अ डायरेक्टर, ऑफ कोर्स यू आर अ राइटर, बट टू गाइड कि सर ऐसे नहीं, मैं ऐसे प्लान कर रहा था, एंड देन देयर इज समथिंग जो आपके हाथ से निकल गया स्क्रिप्ट, फिर वो दो लोगों के साथ पहुंच के किसी और डायरेक्टर को किसी और राइटर के साथ हो रहा है एंड कुछ अलग ही हो रहा है। तो do you guys have any incident or any experience to share or anything on this point where you've written something else for with a different thought, it has gone to someone else और कुछ और ही निकल के आया, it was nowhere near the idea and still the name was, राइटर में तो नाम फिर अपना ही आएगा क्योंकि हमने अल्टीमेट प्रोडक्ट बेस तो हमने लिखा था, पर वो फाइनल प्रोडक्ट बन के कुछ ज्यादा ही अलग बन गया। मेरा तो खुद का ही काम ऐसा था यार। अच्छा કે લખ્યું તારે કંઈક અલગ હતું, બન્યું તારે વિચાર્યું હતું આના કરતા બહુ જુદું પ્રોડક્ટ નીકળ્યું, અને એ પણ જાતે જ બનાવેલું એટલે શરમ બી ના આવે. વાહ, can we know of details about it, like કયો પ્રોજેક્ટ એવો નહીં પણ કઈ રીતે શું થયું? ना ना आई कैन से सो मैं तो इतना कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेता नहीं हूँ, जो प्रोजेक्ट होता भी है उसमें मोस्टली क्लोज टीम ही इन्वॉल्व होता है, तो एग्जीक्यूशन में उतना प्रॉब्लम है नहीं, जो हमने सोचा है उसके आसपास ही होता है. बट हाँ, नया नया जब शुरू किया था स्टैंड अप 2014 या 15 में, तो वो समझ नहीं आता था कि ऑन पेपर जितना फनी हो उतना एग्जीक्यूशन में फनी कैसे हो, और ऑन पेपर अपने दिमाग में ऐसा ही लगता है कि आप कुछ गालिब लेवल या गुलजार लेवल लिखती है, ऐसा घंटा भी ऐसा कुछ होता नहीं है. तो हमने एक वीडियो लिखा था स्प्राइट कॉमेडी कॉन्कआउट के लिए, डेट टू द फ्यूचर. तो वो टाइम पे हमने टीवीएफ का परमानेंट रूममेट्स देखा था, तो दिमाग में ऐसा ही था कि डेट टू द फ्यूचर यूट्यूब पर है वीडियो. तो वो टाइम पे हमने कौन सा, हाँ, स्प्राइट कॉमेडी कॉन्कआउट के लिए वीडियो लिखा था, और वो टाइम पे हम लोग परमानेंट रूममेट्स देखा था, नया नया पहला इंडिया का हिट वेब सीरीज आया था. वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कर गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जो देखते हो ना, आप वैसा ही रेप्लिकेट करके लिखने लगते हो और आपको लगता है कि आप राइटर, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलता है कि आप देख रहे हो और आप बहुत ही घटिया लिख रहे हो. तो ये जरा एग्जीक्यूट થયું ત્યારે ओ भाई मैं खुद ही नहीं देखता वो वीडियो कभी खोल के. राइट, बट हम 5 देखेंगे आज रात को फॉर श्योर. अरे देख सकते हो, एंड में मेरा काम अच्छा है तो बचा लिया था मैंने. बट वही है कि वो पहले इन्फ्लुएंस बहुत करता है जो भी आपने देखा होता है, और फिर धीरे धीरे सालों बाद ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है. હા, this is also a nice point कि like it's always like stand up માં પણ એવું હોઈ શકે અને રાઇટિંગ માં પણ એવું હોઈ શકે કે નહીં. આમ આસ્કિંગ કે ઇન્ફ્લુઅન્સ ને ઇન્સ્પિરેશન વાળી ઘટના તો છે જ कि इंस्पायर तो આપણે બધા થઈએ તો જ આપણે ફીલ્ડ માં આવવાનું ઈચ્છીએ, लाइक हम इंस्पायर होते हैं इसीलिए हम उस फील्ड में आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कुछ काम हम करते हैं थोड़े बहुत, वो अनइंटेंशनली भी कहीं से तो इन्फ्लुएंस हो ही जाता है. फिर अपने को पता चलता है कि यार मैंने कॉपी नहीं किया किसी का, पर ये इसका इन्फ्लुएंस में है, वो बहुत बहुत लेट या थोड़ा लेट अपने को रियलाइज होता है. And it solves by experience, I guess. कि पहलू राइटिंग स्टाइल में आ जाता है कि जैसा आपने कोई फॉर एग्जांपल टीवीएफ का पिक्चर्स देखा या एआईबी का कोई स्केच वीडियो देख लिया, तो आप भी वैसे ही पंच लिखने लगते हो. जैसे एआईबी वाज नोन टू राइट, फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट डिसिंग एनीवन, बट मैंने और आर्यन ने लास्ट टाइम एक ओपन माइक जैम किया था इम्प्रोव का, तो उसमें हम लोग वर्ल्ड्स वर्स्ट गेम खेल रहे थे, वर्ल्ड्स वर्स्ट. और वर्ल्ड्स वर्स्ट में ऐसा है कि वो बोलेगा वर्ल्ड्स वर्स्ट बार्बर, तो सब लोग, हाँ, तो सब लोग वो बार्बर का वर्स्ट लाइन क्या हो सकता है वो बोलेंगे. सो आई डोंट नो आर्या ने कीधेलू के कोई बीजा है, बट दैट जोक वाज, हे कैन आई कट योर हेयर विथ कंसेंट. सो दिस इज द टाइप ऑफ पंच व्हिच आई हैव सीन ऑन इंटरनेट, एंड ये सुन के मेरे दिमाग में एज एन ऑडियंस, मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि हाँ, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इन्फ्लुएंस एक दिमाग में जो पैसिवली आता है. जैसे अगर मैं, जैसे अगर आप बैठ के 10 क्वेंटिन टैरेंटिनो के फिल्में देख लो, तो आप जब खुद लिखने बैठोगे ना, तो आप 5 दिन तक तो उस जोन से निकल ही नहीं पाओगे. आपको लगेगा कि आप अलग लिख रहे हो, बट आप नहीं लिख रहे, आप वैसा ही लिखोगे, और फिर पता चलेगा कि आपने 5 दिन में हक दिया.
इससे एक पॉइंट ये भी आता है कि लाइक एक तो स्ट्रक्चर होता है किसी भी शो का, या हम जो शो लिख रहे हैं वेदर इट्स स्टेज और स्क्रीन, वो शो का स्ट्रक्चर तो चलो वो तो राइटर को फॉलो करना ही है या राइटर ने डेवलप किया ही है, लेकिन एक स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग भी है या स्टाइल ऑफ राइटिंग भी है, जो अभी चिराग भाई ने बोला कि ये स्टाइल ऑफ राइटिंग मैंने कहीं सुना हुआ है, तो लाइक उससे भी पूरा फ्लेवर चेंज हो सकता है। इफ मान लो कि जैसे अपन एक एज एन एग्जांपल अगर हम लोग मान ले कि कपिल शर्मा शो के राइटर कोई एक, अब स्ट्रक्चर वही है, फॉर्मेट वही है शो का, लेकिन अगर राइटर चेंज हो एक पर्टिकुलर एपिसोड के, तो क्या वो दिखेगा दूर से कि यार ये किसी और ने लिखा है, पूरा स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज हो गया है। इज इट लाइक दैट मेजर डिफरेंस? होगा ही ना, आई गेस। व्हाट डू यू से विवेक भाई? भैया देखिए, उतना तो नहीं लगेगा, लेकिन जो राइटर है वो अपने दिमाग से लिखेगा, लेकिन जो कंटेंट हेड होते हैं हमारे, तो उनको तो सारा आइडिया पता ही है कि हमारा शो ऐसे ही जा रहा है, और ये राइटर जो है चाहे नया हो चाहे अभी फ्रेशर पैदा हुआ हो, तो इसको हम वही सिखाएंगे जो हमारा चल रहा था। तो हम जरूरी है। हाँ, तो अभी ड्राफ्ट दिया जाता है, सारे जो राइटर होते हैं, जो फ्रेशर राइटर होते हैं, उनको ड्राफ्ट दिया जाता है, जो पुराना स्क्रिप्ट होता है कि भाई देख लो ये स्क्रिप्ट है, और ऐसे ही लिखा जाता है। अगर एक कैरेक्टर का तुम लिख सकते हो तो ऐसे ही लिखना, बाहर कहीं नहीं लिखना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। तो आपके दिमाग में आ जाता है कि भाई हाँ, हमें यहीं तक जाना है और ऐसे ऐसे पंचेस लिखने हैं, और पूरा घुमा घुमा के ही पंचेस लिखने हैं। और आप तो जानते ही है कि कपिल शर्मा शो वर्ल्ड लेवल पे भी हिट है, वो तो है ही है, नंबर 1 है अपने देश में। तो कपिल सर के जो भी है पंचेस होते हैं, उनका खुद का मैक्सिमम होता है, इम्प्रोवाइजेशन जो होता है। और जो उनके राइटर हैं, अभी तकरीबन मैं तो अंडर में ही काम करता हूँ, मुझे ज्यादा दिन हुआ नहीं था काम करते हुए, 17 से 18 दिन हुए थे बस ज्वाइन किए हुए। तो मुझे धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लगा था कि अच्छा इसमें ये लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, स्क्रिप्ट ऐसे होता है स्क्रीन के लिए। अभी अरे यार, मैं तो स्टेज के लिए ऐसे लिखता था। लेकिन हमें लगता है कभी कभी कि नहीं, ये जोक बहुत अच्छा है, लेकिन उनको पसंद नहीं आता, कहते नहीं नहीं नहीं, ये स्टेज के लिए हो सकता है लेकिन स्क्रीन के लिए नहीं, कपिल के लिए एकदम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारे कंटेंट हेड होते हैं, तो कोई भी राइटर आ जाए, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे बहुत पुराना हो, कैसा भी हो, वो ड्राफ्ट दिखाकर ही उसी पे ही आपको लिखना है, आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते। और ये फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड शो है। अभी उसमें हर 15 दिन में नए राइटर आएंगे, तो उसका एक नीश फॉलोइंग हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो हर 15-20 दिन में बदल जाता है। इसका एक बहुत ही फ्रेश एग्जांपल है, फ्रेश तो नहीं, पुराना है, बट इफ यू हैव बीन फॉलोइंग टीवीएफ का चैनल, द वायरल फीवर का चैनल, सो पहले टीम अलग था, बिस्वपति सरकार, अर्नब कुमार, ये लोग अंदर अंदर ही करते थे, तो इनका ह्यूमर स्टाइल बहुत अलग था। आप राउडीज देखो, आप मुन्ना जज्बाती देखो, आप पिक्चर्स देखो, इनका एक फील था। टीवीएफ, ओल्ड टीवीएफ का एक पूरा ऑरा और फील था। लेकिन अब वो कंपनी कमर्शियल हो गया है, तो उधर क्या है कि उनको डेडलाइंस के साथ जस्ट डिलीवर करना है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट आर्ट फॉर्म या फिर आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, डेट है, आपको करना ही है, ऑप्शन नहीं है। तो उधर उन लोगों ने एक पूरा स्ट्रक्चर ही कर दिया कि स्क्रीन पत्ती पे भाई सब वो पेलू हॉस्टेल टाइप ने एवा बधा वीडियोस, પછી वायरल फीवर पे मैक्सिमम स्टोरी वाले लंबे वीडियोस, गलियापा पे सब फीमेल ओरिएंटेड वीडियोस। तो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर डिवाइडेड है। तो अब उनके पास नंबर्स काफी ज्यादा है, बट आप ऐसा नहीं करोगे कि यार टीवीएफ का वीडियो याद रह गया। तो ये तो है कि अगर डिपेंड कि आपके कंपनी या आपके क्लाइंट का आउटपुट किस पे डिपेंड करता है। अगर वो एक बड़ा शो है जो काफी लंबे टाइम से चल रहा है, तो ये कंटेंट हेड जैसा फिल्ट्रेशन नेसेसरी है, क्यूरेटर, कंटेंट हेड, नहीं तो खत्म हो जाएगा पूरा। ये फिल्टर जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली शो चलाना इज द अल्टीमेट। हाँ, तुम्हारा सपना तुम अलग से पूरा कर सकते हो, लेकिन ऐसा कपिल शर्मा को सफर नहीं करना चाहिए रात को रात। ऑब्वियसली इसमें होता है एक और बार, इसमें एक और ये व्यू पॉइंट आता है कि राइटर के साथ साथ एक्टर में भी सेम चीज होता है। लाइक बेसिकली देखो, राइटर इज आल्सो राइटिंग फॉर अ स्पेसिफिक एक्टर। उनको पता है कि एक्टर कैसे प्रेजेंट करेगा। सो लाइक जैसे कि देयर वाज दिस एनेक्डोट कि एक बंदा है, मुझे पता था कि वो इंसान बहुत डार्क, मतलब ऐसे ही वे में बोलता है, वो एकदम डेडपैन में बोलता है विदाउट एनी एक्सप्रेशन। सो आई हैड रिटन अ नॉर्मल, आई वाज राइटिंग फॉर अ शॉर्ट फिल्म, और उसके लिए एक छोटा सा लाइन लिखा था कि बेसिकली एकदम ऐसे सीरियस सा डायलॉग था, बट द सीरियसनेस ऑफ इट मेड इट सीम डार्क एंड अ लिटिल फनी। Now the actor changed and a new actor was casted. अब वो नया एक्टर था, he told the same dark line but he laughed while saying it. So जो पूरा aspect of his darkness था वो पूरा ही चेंज हो गया। तो like it's just कि writer के साथ साथ it changes with the actor.
Did the director think that it worked? Yeah, and so what happened was something very interesting happened. If you're asking, ki what happened was ki it was intended to laugh, to be funny, but what happened was ki it just became awkward because he laughed, so it seemed कि वो try कर रहा है funny होने का, but हो नहीं पाया. And So that's अगला punch था. in other way that's funny. director Yeah, exactly. Yeah, exactly. So basically, it became a comic relief the next punch because it was like कि ये नहीं work करा, तो अगले वाले में it became more funnier. So it was kind of a fun experiment, but yeah, like ये director actor this always happens कि वो अगर connection नहीं हो तो. Right. So according to the time, we have like last 2-3 minutes. So by summing up the session, would like to ask each one of you, all 5 of you, a motto के suggestion नहीं, but a concluding thing, a concluding point that you want to make in terms of like writing comedy, like writing comedy for stage and screen. कहीं के वो concluding point तुम्हारा क्या वो in one line है. This is what it sums up. Or whether it's for stage or screen, this is what the main role of the writer is. We'll start with you, I guess, Vivek bhai. हाँ नहीं, इसको हिंदी में फिर से बोल दीजिए. बिल्कुल बोल देता हूँ मैं कहना ये चाहता था कि आखिर में जैसे मैं आपसे कोई मोटो या नए राइटर को सीख या ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा, पर उसके बदले में ये पूछना चाहता हूँ आप 5 लोगों से कि ऐसा कुछ एक चीज बताइए जो पूरे सेशन को कंक्लूड भी करता हो और आपको लगता हो कि भैया ये स्टेज के लिए या स्क्रीन के लिए मैं ये बेसिक एक चीज समझ लो खाली, या तो फिर चाहे स्टेज हो चाहे स्क्रीन हो, राइटर को बस ये एक चीज समझनी चाहिए या एक ऐसा पॉइंट जो आप बताना चाहे. अच्छा, एक चीज में बताना है. अब बिल्कुल मैं पहले शुरुआत ऐसा हो तो किसी और से करता हूँ. नहीं ठीक है. बढ़िया. सूरज भाई, what do you want to say at the concluding part of the session? नहीं, बस मेरा यही बोलना है कि हमारा जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हम फॉलो करें हर चीज में. हाँ, फिर वो जिसके लिए आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बात हुआ ये एक्टर है कि ये थिएटर है कि भाई स्क्रीन है, उसके हिसाब से फिर उसको एडिट करते जाओ. मगर जो एक जो बेसिक प्रोसेस है उसको स्टार्टिंग में चेंज मत कर दो, क्योंकि वो स्टार्टिंग में चेंज हो जाएगा ना तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल जाएगा. तो वो जो बेसिक प्रोसेस है उसको फॉलो करो और बाद में उसमें जो जिनको देना है वो हिसाब से आप चेंज करो उसमें. Right. Maulik bhai, what do you have to say here? Your voice is mute. Maulik bhai. I like both are the different process and both has its pros and cons. तो मुझे लगता है दोनों चीजें फॉलो करनी चाहिए. स्टेज के लिए भी लिखो और स्क्रीन के लिए भी लिखो. और जहाँ तक मेरा सोचना है ना, तो जैसे सब स्क्रीन के ऊपर लगते हैं, जैसे कि फॉर्मेट है, जैसे कि ऑफिस का जैसा शो है या कपिल शर्मा का शो है, उसमें टीम वर्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है. जब आप टीम वर्क में काम करते हो ना तो उसमें आपका पर्सपेक्टिव भी खुलता है और अलग अलग चीजें सीखने को भी मिलती है. तो दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस एज अ टीम वर्क. और जब आप खुद के लिए स्टेज के लिए स्टैंड अप लिखते हो तो ये क्या कि आपका मतलब इंटरनली इमोशंस दिखाना है या आप व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हाट यू वांट टू कन्वे. देयर इज इंटरनल सैटिस्फैक्शन. द टीम वर्क इज अबाउट लर्निंग एंड इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. बोथ थिंग्स शुड बी डन. तो दोनों चीजें करनी चाहिए एज अ राइटर. राइट. विवेक जी क्या कहेंगे आप? नहीं, बढ़िया. अभी मौलिक भैया, सूरज भैया ने बताया, अच्छा बताया. एक राइटर हो या फिर वो परफॉर्मर हो, तो पहले बात तो ये भी है, मेरा जितना मानना है कि आप पहले लिखना आप शुरू करो किसी भी पॉइंट पे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं हम कर सकते हैं. बोलना बहुत आसान होता है. अभी मैंने जो कुछ भी बोल दिया आपको बड़ा आसानी तरीके से बोला, लेकिन जब इसको हम नोटपैड पे अगर लिखते हैं तो फिर ये थोड़ा कठिन हो जाता है. तो यही एक तरीका होता है कि आप स्टेज के लिए हो चाहे आप स्क्रीन के लिए हो, पहले लिखना आप सीखो. पहले आप लिखो तो तब पता चलेगा कि हाँ, मेरे पंचेस ऐसे हो सकते हैं और इतना हो सकता है. 1 लाइनर हो सकता है, 2 लाइनर हो सकता है, सस्पेंस कॉमेडी हो सकती है. तो अब धीरे धीरे पता चलता है. तो मेरा बस इतना ही कहना है. राइट. बिल्कुल. आर्यन भाई, व्हाट डू यू वुड लाइक टू ऐड हियर? टू कंक्लूड, मतलब मैं ऐसा बोलूं तो नेवर लेट अ फॉर्मेट लिमिट यू, क्योंकि मतलब यू नेवर नो, हमें भी बताने की कौन सा फॉर्मेट कहाँ एग्जिस्ट करता है. लाइक आई रिमेम्बर कि मैंने आई थिंक शायद से अमित भाई आपको बताया था कि लाइक आई हैड मेट दिस थिंग कि एक बंदे को मिला था न्यूयॉर्क में, एंड वो बंदे का ऐसा था कि मतलब ही वाज डूइंग स्टैंड अप, वो 12 साल से स्टैंड अप कर रहा था एंड कोई इसको जानता नहीं था. सो लाइक मैंने खाली पूछा कि लाइक अगर इफ यू आर अ कॉमिक एंड यू आर अ राइटर 12 साल से, तो कैसे नहीं जानते. सो द थिंग वाज कि उसका जॉब था कि सिटकॉम्स में ही वाज अ ओपनिंग कॉमेडियन.
कि बेसिकली कि सिटकॉम्स में लाइक उसका रिकॉर्डिंग होता है, ही जस्ट वो रिकॉर्डिंग के पहले खाली ओपन करता था, मतलब उसका कहीं एक्चुअल सिटकॉम में नहीं आया, बट खाली ऑडियंस का मूड बिल्ड करे. बट आई वाज लाइक कि मतलब ये तो क्या ओपनिंग एक्ट इज लाइक मतलब कंपैरेटिवली 12 साल से कर रहे हैं तो हाँ वार्म अप. बट ही टोल्ड कि मतलब द अमाउंट ऑफ मनी वो कमा रहा है दैट इज वे मोर देन अ नॉर्मल कॉमिक जो वहां पे काम कर रहा है, फॉर अ सिंपल रीजन कि हम लोग को लग रहा है कि यार ये मूड बनाना क्या बड़ी बात है, बट लिटरली वो पहले वो एपिसोड का स्क्रिप्ट पढ़ता था. वो एपिसोड का स्क्रिप्ट पढ़े, ही इज लाइक इट इज गेटिंग अ लिटिल सैड, इज गेटिंग अ लिटिल डार्क, लाइक जितना भी जॉनरा हो, फ्रेंड्स में भी सैड एपिसोड होता है, डार्क एपिसोड होता है, अकॉर्डिंग वो कंटेंट करता था. एंड इट यूज्ड टू बी एन एक्सीलेंट जॉब. लिटरली ही वाज लाइक कि जितना इजी लगता है इतना नहीं है, एंड दैट वाज एंड दैट्स अ प्रोफेशनल जॉब जो वहां पे एग्जिस्ट करता है हमें पता भी नहीं. So there are many such jobs जो हमें पता भी नहीं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते. So never let the format limit you. That is one thing I would say. True. चिराग भाई, what would you like to say? मेरा इतना कुछ खास तो कुछ ही साल हुए, उसमें भी कुछ खास किया नहीं, बट सिर्फ दो चीजें कि अगर आप किसी के लिए लिख रहे हो तो मेक श्योर कि उसको जो चाहिए वो आप प्रोवाइड करो, क्योंकि वो आपको पे कर रहा है एंड ही हैज हायर्ड यू फॉर अ रीजन. तो आप मतलब उनको जो चाहिए वो दो, अपना ही दे करोगे और फिर उसका भी काम बिगड़ेगा, आपका भी बिगड़ेगा. और दूसरा कि अगर आपके पास लिबर्टी है और आप अपने हिसाब से कुछ आर्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हो जो हम स्टैंड अप में करते हैं या फिर प्राइवेट चैनल्स या फिर जहाँ पे आप हाईलाइट हो रहे हो वहाँ पे करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि मेक श्योर कि आप अपने प्रेजेंट कैलिबर में, मतलब आप जो पॉइंट आपके करियर में चल रहा है, तो जितना भी नॉलेज है उसके हिसाब से कुछ ऐसा चीज क्रिएट करो जो आपको 10 साल बाद देखने के बाद भी प्राउड हो कि हाँ यार ये मैंने कुछ आर्ट क्रिएट किया था. या तो यू डोंट फील कि यार मैंने क्या कर दिया था, कुछ तो ऐसा है कि इवन इफ इट डजंट वर्क, कोई प्रोडक्ट या वीडियो या कुछ ऐसा भी होगा जो जिसपे बहुत ज्यादा हेट होगा, लेकिन उसके पीछे का इंटेंट हमेशा क्रिएटिव और आर्टफुल रहना चाहिए, तो हमेशा एवरग्रीन ही रहेगा. उस टाइम अगर आप आलस करोगे या फिर जस्ट नंबर्स की तरफ जाओगे या फिर कि ये सब चल रहा है तो मैं भी यही कर देता हूँ, तो जस्ट आप भेड़ चाल में ही हो, सक्सेसफुल हो जाओगे बट सेटिस्फाइड नहीं हो. हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट. राइट. बिल्कुल. थैंक यू सो मच ऑल फाइव ऑफ यू फॉर जॉइनिंग. कौन है तू? बता अच्छे आई गेस. सूरज भाई वीडियो ऑफ है खाली वीडियो ऑफ है. सो थैंक यू सो मच चिराग भाई, विवेक भाई, मौलिक भाई, सूरज भाई for joining in. Thank you so much for this discussion.